खुदावंद में आप सबको एक बार फिर सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद में आप भी इसी तरीके से खुश हैं। और इसीलिए हर संडे को हम खुशी की खबर के साथ खुशी की खबरें लेकर कलाम में से इत्मीनान की, तसल्ली की लेकर खबरें हम आपके तक आते हैं। और आज के इस टॉपिक के लिए जो कि पास्टर क्रिस्टोफर कंटिन्यू करेंगे, आज उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, इंटरवेंशन ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। खुदावंद की मदाखलत हमारी ज़िंदगियों में कितनी अहमियत रखती है, आए हम देखें। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। एक बार फिर आप लोगों के नहायत शुक्रगुजार हैं। Thank you for your emails, thank you for your feedbacks, thank you for your phone calls, and thank you for watching this program today. We are very thankful to you that you're giving us your time to watch it every Sunday, and I know time is precious, and this is really a precious time. वाकई एक कीमती वक्त है when I can see you through my imaginations because I have not seen you lately. Maybe there are many people watching. Sometimes I meet people and they say, oh, we've been watching you on the TV, and I said, but I never saw you. There's many who do not send their emails, but still they watch the program. So I'm thankful to all of you for watching this program. And again, we are in the winter, going into the winter, and then going towards the Thanksgiving, and then going towards the holidays, Christmas, and this is a joyful season. Let us see from the Bible. आइए बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਨੇ ਆ number 2. This is the part 2 of our broadcast from last week. We'll continue intervention of Jesus in our life. ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. Let us see in Matthew Gospel of Luke chapter 17 verse 24 it says, and when they came to Capernaum, they that received tax money came to Peter and said, doth not your master pay tribute? ऐसे एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि नीम इसकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम इसकाल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वो घर में आया तो यीशु उसके बोलने से पहले ही कहा, आए शमाउन। When he came to his house, Jesus said to him, before Peter can speak, Jesus, it says in the English version, Jesus prevented him saying, यीशु मसीह ने ओनू बोलन तो रोक्या. We are looking on the second part of this topic, intervention of Jesus Christ in our life. यीशु मसीह दी मुदाखलत साडी जिंदगी च. So what is the situation? Peter do not have money to pay to the tax people. They don't have money. Jesus also don't have money. So now in this situation, the people who wanted the tribute, they came to Peter, asked him, bhai tada ustad jehda ve oh paise kyun nahi dinda pya? Oh dinda nahi miskal ke nahi dinda? That was an obligatory tax. Patras kehda pya bhai dinda dinda hai. Ohnu nahi pata lekin kehda dinda hai. Ohnu jadon ghar aanda pya te samne Yesu ji khlote ne. ਐਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, he prevented him to speak. ਕਿਉਂ? It means Jesus intervened. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ. ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਪਤਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਲੈ ਲਓ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇ. ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦ ਬਾਈਬਲ ਫਰਮ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਈ ਇਟ, ਜਸਟ ਰੀਡ ਇਟ ਫ੍ਰੀ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂਗੈਦਰ, ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਬੋਟ. ਸੋ wherever we read about Peter, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. There are some people like that. Every time they speak, without even listening other person, they speak. And then they go into a problem. I know it happened to you. It happened to me. It happens to everyone. ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨੀਮ ਇਸਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ.
घर आया, मसीह ने मुदाखलत की, पतरस ने बोलन की इजाजत नहीं दी, पतरस ने अपना मुंह खोलना मिलिया ही नहीं। यीशु ने क्या बजाय से पूछता, उस्ताद जी असी जजिया दईए, निमस्काल दईए कि ना दईए? Before Peter can ask, Jesus repeated, asked him, what do you think? तू क्या समझना, तू क्या समझता है? मसीह ने समझाया, और क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पर। आए शमौन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं? अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा बस बेटे बरी हुए, लेकिन मबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस बने, मबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस बने। We should offend them, lest we should offend them। आज हर असी बंदा जड़ा, औरत, बच्चा, माँ प्यो, दूसरा ठोकर दा बायस बने। Now we like to offend people, but Jesus says, I don't want to offend anyone. What a man came from heaven in the body, became a man, but he is not a man. कहना मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता, मैं टैक्स देना चाहना हूं। आज असं टैक्स तो नसदे फिर रहे हैं। Today we are running from the taxes, but Jesus paid taxes. People are hiding their money so they can pay the tax, but Jesus says in the Bible we have to pay the tax to the government. यीशु मसीह कहता कि गवर्नमेंट को टैक्स दवो, हेरा फेरी ना करो। यीशु ने से कहा कि बादशाही के बेटे क्यों जजिया अदा करें, हुकूमत वाले क्यों जजिया अदा करें, लेकिन क्या कह रहा है? Jesus was not afraid of the government, he was afraid of his father's rules and his government, his kingdom. He is King of Kings. जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए, उन्होंने पीछे गड्डियां नहीं लेके जानियां पियां। People, when Jesus came to capture Jesus, there were no police cars coming behind him. He surrendered himself voluntarily. आपको ये बात समझनी है कि there are two kinds of relations in the world. Now, the first relation is the relationship between you and your God. The second relation is a relationship between you and the people of God. आपके और खुदा के दरमियान बेशुमार रिश्ता, जो रिश्ता है उसमें बेशुमार भेद हैं, राज हैं, हुक्म है, ज़रूरी बातें हैं जो आपको मालूम है कि हमने उन पर अमल करना है, और आप करते हैं या कभी कभी नहीं भी करते, और आप इसमें शामिल हैं यीशु मसीह में, आप उसकी मर्जी पर अमल करते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब आप जिंदा नहीं रहे बल्कि यीशु मसीह आप में जिंदा है। खुदा की मर्जी आपको पूरी करनी है, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरियों की वजह से, हालात की वजह से आपको खुदा की मर्जी पूरी करने में रुकावट हो जाती है, आप इसे पूरा नहीं कर सकते, और देन you go and take another way. Sometimes, due to your circumstances, you are unable to fulfill the will of God. Then you take the shortcuts. पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं जिंदा ना रहा। Let's take an example. एक मिसाल लेने। God has called you, and you stood up in a church and said, God, I confess all my sins and now I will serve you. And then the time comes when you go for the service of God, you are going to ministry, your ticket has been given, people have been given you a car or anything, or everything is ready, and suddenly your parents come in and they say, this is not time for you, son, to go to minister.
दिस इज नॉट टाइम, तेरी टाइम नहीं आया कि तू इस वक्त जाके खुदा दी खिदमत करें, तू 5 साल और पढ़ फिर जाके खुदा दी खिदमत करी। देन व्हाट यू विल डू? इस वक्त आप क्या करेंगे? मसीह ने आपको बुलाया है और आप उसको करने के लिए तैयार हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अचानक आपके माँ बाप बीच में आ गए। उन्होंने कहा बेटा हजे तेरा वक्त नहीं आया, 5 साल तू पढ़, कॉलेज की डिग्री हासिल कर, फिर जाके खिदमत करी रब दी। फिर की करोगे? की जवाब है तुहाडा? What you will do? In this condition, from the Bible, there's an answer that you have to obey what your parents say. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। You have to obey, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? Because God cannot go against his rules. खुदा कहता पे बाइबल से अपने माँ बाप की इज्जत कर। God says to you, respect, honor your father and mother. अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनका हुक्म मान। माँ प्यो कह रहे हैं हजे तुझे नहीं जाना, अगर ऐसी बात है then you have to pray, God speak to my father and mother, let them send me to serve you. क्या हुआ फिर? यीशु मसीह ने कहा पतरस जाकर टैक्स के पैसे अदा कर। यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया। वो बादशाह था, बादशाहों का बादशाह है, लेकिन वो टैक्स अदा कर रहा है, अपने आप को पस्त कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, आदमियों के मुशाबे हो गया और अपनी और सलीब उठाई उसने। सलीब उठाने का क्या मतलब? मुश्किल काम। आपको अपनी सलीब उठानी है, यह बड़ा मुश्किल काम है जो मैंने मिसाल दी है। आप खिदमत पर जाना चाह रहे हैं, खुदा आपसे कलाम कर रहा है, लेकिन आपके माँ बाप आपको नहीं जाने दे रहे। Then you have to pray, you have to wait. आपको ये सलीब उठानी पड़ेगी। एंड जिस शख्स की मैं मिसाल दे रहा हूं, जब उसने खुदा से दुआ की, खुदा ने उसे कहा कि तुझे अपने माँ बाप की बात माननी पड़ेगी, तुझे सब्र करना पड़ेगा, तुझे ये सलीब उठानी होगी। नाउ डेज वी डोंट वांट टू लिफ्ट अप आवर क्रॉस। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए, मेरे पीछे आए। लेकिन आजकल हम सलीब उठाना नहीं चाहते, हम बेटे की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते। पतरस यहां पर बेटे की मर्जी क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? खुदा यीशु मसीह की मर्जी हमारी जिंदगी में, बेटे की मर्जी हमारी जिंदगी में। बेटा क्या कह रहा है? जाकर उनको टैक्स दे। मैं बादशाह हूं, मेरी बादशाही भी है, बट यू हैव टू पे द टैक्स। तो जाकर उनको टैक्स अदा कर। खुदा जानता है आपकी मुश्किलों को, जिन हालात से आप गुजर रहे हैं। पतरस के लिए मुश्किल था ये टैक्स देना, लेकिन खुदा जानता था। क्या किया खुदा ने? उसने कहा कि मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस बने, lest we offend them. How do we offend people? By our tongue, by our actions, by our deeds, by our reactions, by our words. Now these days by our tweets, by our statuses, we offend people. यीशु कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उनको ऑफेंड करूं। I do not want to offend them. मैं उनके लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहता। कितनी अजीम बात है, कितनी अजीम बात है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उनके लिए ठोकर का बायस बनूं। हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना बने। Let us not offend other people. दुनिया में बेहद लोगों ने अपनी मर्जी करने के लिए, अपनी अना के लिए, अपनी मगरूरी के लिए, अपने ईगो के लिए अपने घर वालों को वो ठोकर का बायस बने हैं। चर्च में लोगों के लिए ठोकर का बायस बने, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, अपनी मैं को पूरा करने के लिए, अपनी समझ के मुताबिक काम करने के लिए उन्होंने खानदानों को बर्बाद किया है।
और फिर वो ये कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी हमने पूरी की है, जो कुछ मैंने किया वो खुदा की तरफ से है। खुदा कह रहा है कि मैं किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहता, और अगर आप किसी के लिए ठोकर का बायस बन रहे हो, इफ यू आर रीजन ऑफ ऑफेंडिंग समवन, देन यू आर नॉट डूइंग द विल ऑफ गॉड। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी को ठोकर खिलाएं, बल्कि लिखा है कि अगर इन छोटों में से कोई किसी को ठोकर खिलाएगा, देयर इज अ बिग 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 पनिशमेंट फॉर दैट। कि बड़ी चक्की का पार्ट, छोटी का नहीं, बड़ी चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाकर उसे समुद्र की तह में भेज दिया जाएगा। आज हम अपनी बातों से लोगों के लिए ठोकर का बायस बने हुए हैं। हम अपने कलाम से, अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से, अपने बच्चों के जरिए से, अपने ड्रेस के जरिए से लोगों को ऑफेंड करते हैं। अपने जोश में आकर खुदगर्जी से अपने बहन भाइयों को ऑफेंड करते हैं, अपनी एजुकेशन के बायस। बल्कि यहां पर क्या हुआ, यीशु ने पतरस को बोलने नहीं दिया। बिफोर ही कुड स्पीक, इससे पहले कि पतरस बोलता, यीशु ने कहा मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है, स्टॉप। लिखा है यहां पर, जीसस प्रिवेंटेड हिम सेइंग, यीशु ने रोक दिया पतरस को। एक शख्स था, वो एक हॉस्पिटल में गया, उसने एक बीमार के लिए दुआ की, बीमार बिल्कुल ठीक हो गया। उसने अपने साथी को बोला ये बीमार ठीक हो गया है, ही इज वॉकिंग नाउ, लेट अस गो टू ऑल द हॉस्पिटल्स इन द सिटी एंड प्रे फॉर एवरी सिक पर्सन दैट ही कैन रेज अप फ्रॉम द बेड, सो ऑल द हॉस्पिटल्स विल बी एम्प्टी। वो दूसरे अस्पताल में गए, बीमार के लिए दुआ की, कुछ नहीं हुआ। वो बड़ा गमज़दा हो गया। उसने कहा कि क्यों खुदा ने मौजूदा नहीं किया? तो जो उसके साथ वाला भाई था उसने कहा कि खुदा की मर्जी करने की बजाय तूने अपनी मर्जी की है। खुदा की मर्जी थी कि तूने फर्स्ट पेशेंट के लिए दुआ की, वो शिफा पाता, लेकिन जब तूने दूसरे पेशेंट के लिए दुआ की, ये तेरी मर्जी थी, खुदा ने तुझे उसके पास नहीं भेजा था, तो अपनी मर्जी से गया था ताकि पूरे शहर में तेरा नाम हो जाए। इसलिए खुदा ने उसको ठीक नहीं किया। आज आप क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने हैं कि जहां भी जाऊं लोग मुझे देखें, जहां भी जाऊं लोग मेरी वाह वाह करें, जहां भी जाऊं लोग मेरा नाम बड़ा करें, जैसे पतरस यहां पर कर रहा था। यीशु ने कहा नो, आई विल स्टॉप यू स्पीकिंग, लेट मी स्पीक। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आपकी जिंदगी में वो बोले, आप अपनी जिंदगी में खामोश रहें, खुदावंद यीशु मसीह को बोलने दें, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में बोलने दें। आज हम अपनी खानदान के लिए ठोकर का बायस बने हुए हैं, चीखने चिल्लाने से, लड़ाई झगड़े से, गालियां देने से, गुस्से से हम खुदा के घर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी बड़ी सजा चुनी है आपके लिए कि अगर तू किसी को ठोकर खिलाए, इफ यू ऑफेंड समवन, तो तुझे यह सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जब आप खुदा की मर्जी को, यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? अब मैं जिंदा न रहा, अब मैं मसलूब हो चुका हूं, मैं अपनी सलीब उठाता हूं, बेशक ये जो कुछ है मुझे पसंद नहीं, मैं अपनी सलीब उठा रहा हूं। पतरस को भेजा जाके मछली के मुंह से एक कॉइन निकालना, एक मिस्काल। नाउ टेक अप द फिश दैट कम्स फर्स्ट, and when you open the mouth of the fish you will find a piece of money। आपने देखा कि मछली जो है पानी में रहती है, उसको सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, लेकिन ये मछली जहां पर पतरस को भेजा गया, एक मछली मुकर्रर की थी कि पतरस की जरूरत पूरा करे। आज भी खुदा आपकी जरूरत को पूरा करना चाहता है। आज भी तो देना चाहता है। ਤੁਹਾਡੀ की मुश्किल है, की परेशानी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा नहीं, यीशु मसीह की मर्जी पूरा करो, वो ਤੁਹਾਨੂੰ खुद कहेगा कि जा करे कर। ਇੱਥੇ पतरस ਕੋਲ पैसा नहीं टैक्स देने ਲਈ, यीशु मसीह कहता पिया जा झील दे उत्ते चला जा।
पहली मच्छी जिहड़ी आएगी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ कॉइन रखिया दा ਉਹਨੇ मछली ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ कॉइन कदों ਦਾ ਆਵੇ कदों मछली ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ कॉइन गया ਇਹ खुदा जानदा खुदा सारे भेदां ਨੂੰ जानदा है मछली ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ कॉइन ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुदा तुहाडी जरूरत पूरी करेगा what it means to take a coin out of the mouth of the fish it means that a thing which stays in the water deep where no one sees it God is able to fulfill your need from the piece of that fish today he is able to fulfill your needs let us pray आइए दुआ करें कि खुदा तुहाडी ज़रूरतां पूरी करे खुदावंद यीशु मसीह तू जिसने पतरस को बोला कि झील पर जाकर बंसी डाल और मछली निकलेगी उसके मुंह से पैसा निकालना और टैक्स के लिए देना आज तेरे लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है फाइनेंशियल क्राइसिस में है जो कर्जे की हालत में है जो कर्जे की लानतों में दबे हुए हैं तेरे यीशु नाम से उनके सारे कर्जों को हुक्म करते हैं कि खत्म हो जाए लानते कर्जे की लानत चली जाए यीशु नाम से बरकत आ जाए खुदावंद तू अपने लोगों को मुहैया कर क्योंकि तू यहोवा यरी खुदा है इनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो तू इनकी जिंदगी में इंटरवीन कर तू इनकी जिंदगी में इंटरवेंशन कर खुदावंद ताकि इनके तमाम तर काम तेरे नाम से पूरे हो जाए हर बीमारी चली जाए हर दुख चला जाए रोग चले जाए खुदावंद ओ खानदानी मुश्किलें खत्म हो जाए तलाक की मुश्किलें खत्म हो जाए खुदावंद लड़ाई झगड़े तेरे यीशु नाम से खत्म हो जाए ये अपनी मर्जी ना करें बल्कि ना किसी को ऑफेंड करने के लायक हो बल्कि तेरी मर्जी को पूरा करें यीशु के नाम में आमीन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ if you like prayer service or you want to see me you can always come 5 p.m. in Sterling, Virginia at our church and I'll be more than happy to see you continue to watch Khushi Ki Khabar and every time we come on air in your house we always bring a good news खुशी की खबर खुदा तुहानू बरकत दे खुदावंद का शुक्र है कि आज के इस जिंदा कलाम के लिए जो हमने पास्टर क्रिस्टोफर के ज़रिए सुना कि किस तरीके से खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी होती है अगर हम उसे इजाज़त दें हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इस कलाम को सुना खुदावंद आप सबको बरकत दे ओ तेरी मैदा प्याला यसु पीना तेरे कदमां च यसु हुन जीना ओ तेरी मैदा प्याला यसु पीना तेरे कदमां च यसु हुन जीना तेरी मैदा प्याला लगे हर शय तो आला तेरी मैदा प्याला लगे हर शय तो आला हुन भर भर जाम यसु पीना तेरे कदमां च यसु हुन जीना तेरी मैदा प्याला यसु पीना तेरे कदमां च यसु हुन जीना दी डोरी च परोया मैनू इश्क दी डोरी च परोया कड टोया चों लहू नाल धोया कड टोया चों लहू नाल धोया तेरे प्यार वाली डोर कीता मैनू शाहदोर तेरे प्यार वाली डोर कीता मैनू शाहदोर मैं खाक सा बनया नगीना तेरे कदमां च यसु हुन जीना तेरी मैदा प्याला यसु पीना तेरे कदमां च यसु हुन जीना
गई ਏ रूह दे आन नाल जान पै गई ਏ चढ़ी पापा वाली मैल लै गई ਏ चढ़ी पापा वाली मैल लै गई ਏ होया मैं सानी ढाल कीता मैनू बहाल होया मैं सानी ढाल कीता मैनू बहाल कीता मेरा पूरा सफीना तेरे कदमां च यसू हुण जीना तेरी मैं दा प्याला हमारा चौपान है इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन खुदा ने सी बनाया यीशु दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां